Hello class, welcome to Full Syllabus channel. Today we will be doing the next topic, that is types of splitting and how a splitting pattern is termed to be simple or complex in nature and why it is termed as simple or complex. Let's first start with a simple kind of a splitting. A simple kind of a splitting is something like this, that there is only one hydrogen in the vicinal carbon, there is no hydrogen. So this will show you a singlet. If there is a vicinal hydrogen, then also the splitting is very clear and doublet is formed. This hydrogen will be splitted due to the presence of this hydrogen and a doublet will be formed having a coupling constant J. If instead of one there are two hydrogens in the vicinity on the vicinal carbon, then you will get a triplet and you will get a J value which is same for both the differences of the peak. And in the last example, as I have written, in this example I have taken the vicinal carbon having three hydrogens and it is showing you a quartet. As you know that simple splitting will follow n+1 rule. That means for three hydrogens a quartet will be formed. 3 + 1 4, a quartet will be formed. Right class? For a complex spectra, why? First of all, let's discuss a complex spectra comes. How do you know by seeing a spectra that it's complex in nature? If there are many protons, n number of protons which are non-equivalent. If they are non-equivalent, what will happen? That their delta will vary, and if their delta will vary due to their nearby nature of their chemical shift, that is, if they have delta very near, the n plus rule will not be obeyed due to some reason, then that spectra will not come under the category of simple, it will go into the category of complex. As I told you, the delta of the coupled hydrogen are very close. As the delta will be very close, that's the only reason that the peaks, instead of getting distinct, they will be merging into each other. The third reason is the presence of chiral center or diastereotropic protons are present. If there are diastereotropic protons, they will be having a different coupling constant with the neighboring hydrogens, but the coupling constant is very similar. The value is not that different. So again, there will be a case that the peaks will get merged into each other, giving you a complex spectra instead of a simple spectra. And for getting a solution to a compound structure, we need a simple spectra to be solved. We don't need a complex spectra because it is very difficult to solve a complex spectra. So what we will be doing, we will be discussing examples of simple as well as complex spectra and how a complex spectra can be converted to a simple one with the help of many techniques. Okay class? Now let's start my discussion with the simple splitting of a spectra. As I told you, in the first case, I've taken one single hydrogen and there is no geminal or vicinal hydrogen. So a singlet will be seen, right? In the second case, I have taken a vicinal hydrogen which will be getting this singlet converted to a doublet. That means this hydrogen will be affected by the presence of this vicinal hydrogen and there will be a coupling constant Ja that will be separating the two peaks. From singlet it is converted to doublet. Then if instead of one there are two protons and these two are diastereotropic protons, as I told you in earlier classes also, then H will be affected by the presence of Ha as well as Hb, and as you know H and Ha are trans to each other, then their coupling will be more than the cis one. This will be having a more or higher coupling constant than the cis one. So Ja I have written before, then it is splitting to Jb. Now the third case, that I have taken one more vicinal proton here, Hc. So now Hva will be affected by all of the three and you will be getting these kind of 8 peaks. Okay class? Right? So you will be getting a doublet. That means a doublet that is splitted to a doublet and that doublet is again splitted to a doublet. Okay class, so in total of 8 peaks you will be getting. Now let's talk about the rule, n+1 rule. If the proton is spin coupled to more different set of neighboring hydrogens. For example, मान लेते हैं कि Na number है Ha protons के
NB नंबर है HB प्रोटॉन्स के, NC नंबर है HC प्रोटॉन्स के। तो मल्टीप्लिसिटी हमें पता है N+1 से आती है, पर अब यहाँ पे इतने टाइप के इतने हैं तो Na+1, आप यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू NB+1 इंटू NC+1, जो कि आपके यहाँ इस वाले केस में हुआ। क्या हुआ? 1 2 3 तीनों अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स थे। 1+1 2, 1+1 2, 1+1 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, एंड यू हैव सीन दे आर 8 पीक्स, राइट। तो आपका इस फॉर्मूला से आप डिफरेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जिन्हें हम बोलेंगे उनको उनके नंबर को रखकर बता सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी थियोरेटिकली या सिंपल स्प्लिटिंग में आनी कितनी चाहिए, कितनी पीक्स आपको शो होनी चाहिए, पर जरूरी नहीं है वो पीक्स शो हो। क्यों? रीजन है उसका ये। केस 1 एक रीजन है उसका कि आपका या तो तीनों का जे डिफरेंट हो, या फिर जे स्मॉलर है और फैक्टर है लार्जर जे का। अगर जे स्मॉलर है और वो जे किसी दूसरे जे का, जैसे कि अभी ऊपर हमने जो केस किया उसमें अगर मान के चलें जे सी जे बी का या फिर जे ए का मल्टीपल है, दैट मीन्स जे सी इज समवेयर मल्टीपल ऑफ जे ए, तो क्या होगा? वो इस पीक्स को कहीं ना कहीं मर्ज कर देगा, राइट। तो क्या केसेस है हमारे केसेस हैं कि जे स्मॉलर है और फैक्टर है लार्जर जे का, तो कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग मिलेगी। बट अगर तीनों के जे बहुत डिफरेंट होते तो सिंपल स्प्लिटिंग मिलती। तो आप देखें जरा, अगर हमें जे स्मॉलर मिलता है और वो फैक्टर भी है किसी ऊपर वाले जे का, तो हमें ये पीक्स क्या मिलेंगी? ऐसे मर्ज मिलेंगी। इंस्टेड ऑफ 8 देयर विल बी ओनली 5 पीक्स इन टोटलिटी। इस तरीके से ये पीक्स मर्ज कर जाएंगी। अब जैसे कि हम ये केस स्टडी करते हैं, यहां पर इसका this is will be the upfielded one, this will be the downfielded one due to the presence of X। ये अच्छे से एक ट्रिपलेट देगा, ये भी अच्छे से एक ट्रिपलेट देगा बिकॉज ऑफ द CH2 प्रेजेंट नियर बाय। दैट मीन्स HA का आप एक ट्रिपलेट देखेंगे, HC के प्रोटॉन्स का आप एक ट्रिपलेट देंगे। HB का क्या होगा? HB एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट दे सकता है। लेट्स डिस्कस HB। देखिए मेरा JAB, दैट मीन्स जे ए से जो बी इंटरेक्ट कर रहा है एंड बी से जो सी इंटरेक्ट कर रहा है, ये दोनों तो अनइक्वल होंगे, ये फॉर श्योर है। पर अनइक्वल होने के साथ कितने डिफरेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा एच बी का जो सिग्नल है वो क्या आने वाला है। अगर ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो मेरी स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। क्या? 3 + 1 इंटू 2 + 1, दैट मीन्स 4 इंटू 3 गिविंग अस 12 पीक। पर अगर ये थोड़े से भी क्लोजली रिलेटेड है या फिर इनमें से एक बहुत स्मॉल है और दूसरे का फैक्टर बन जाता है, तो क्या होगा? यू विल बी सीइंग कि पीक्स मर्ज कर जाएंगे। और वो पीक्स मर्ज करके क्या आप बिहेव करेंगे कि ये सारे प्रोटॉन आप एक साथ काउंट कर लीजिए, उसमें +1 कर दीजिए, दैट विल बी रिजल्ट दैट यू विल सी। जैसे देखिए आपको दिख रहा है इसके लिए 6 पीक्स, दैट क्लियरली शोज कि ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा बन गया है। ये आपका सिंपल स्प्लिटिंग से नहीं आ रहा है जो कि N+1 रूल से आना चाहिए था, दैट इज QT क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, जो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखता कि HB पहले एक ही वजह से स्प्लिट कर गया, देन वो वाली पीक्स चारों इंटू ट्रिपलेट स्प्लिट कर गई और 12 पीक्स आई। इनको हम बोलते हैं आपकी इक्विवेलेंट स्प्लिटिंग, प्रॉपर स्प्लिटिंग हुई है। अब दो केसेस ये भी देखने हैं। अगर मेरा JAB ज्यादा होगा JBC से, तो आपको पहले क्वार्टेट दिखेगा देन ट्रिपलेट दिखेगा जैसे मैंने बनाया है। बट अगर JBC ज्यादा हो जाता है तो पहले HC की स्प्लिटिंग दिखाएगा, दैट इज ट्रिपलेट, एंड देन क्वार्टेट दिखाएगा हर एक पीक का। इन टोटलिटी पीक्स 12 ही आएंगी, बट पहले क्या दिखेगा वो फर्क पड़ता है। ऐसे डायग्राम को हम बोलते हैं ट्री डायग्राम, ठीक है। अब एक चीज, अगर ये हैं दोनों सिमिलर ऑलमोस्ट सेम, तब क्या होगा? तब हमारी ये पीक्स अब क्या करेंगी? ऐसे ना दिखे, ये मर्ज दिखेंगी एंड ये पीक्स इन टोटल कन्वर्ट हो जाएंगी फ्रॉम 12 टू ओनली 6, जिसका मतलब कि जो मेरे HA और HC के प्रोटॉन है इन सबको ऐड कर दीजिए एंड +1 कीजिए। देखने में तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम जैसी बात ही लगी कि N+1 हो गया, पर आप इसको सिंपल स्पेक्ट्रा नहीं बोल सकते क्योंकि HA और HC जो हैं वो दोनों के दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो नॉन इक्विवेलेंट थे, तो उनकी स्प्लिटिंग अलग अलग दिखनी चाहिए पर नहीं दिखती है,
राइट क्लास। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये है सिंपल स्प्लिटिंग का एग्जाम्पल, ये है कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग का एग्जाम्पल, वेयर दिस इज JAB एंड दिस इज JBC। ओके क्लास। अब ये है एक सिंपल स्प्लिटिंग का एग्जाम्पल जिसमें कि COCH3 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इन तीनों को क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। HC सबसे ज्यादा डाउनफील्ड होगा क्योंकि ये आपका बिल्कुल इसकी सामने विसिनिटी में आ गया है एज कंपेयर टू HB। ये मैंने इनके कपलिंग कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं। एज आप देख सकते हैं कपलिंग कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम विद सबसे ज्यादा डाउनफील्ड जो है HC। HC HB से भी कपल करेगा एंड HA से भी कपल करेगा। एज यू नो विस्नल कपलिंग का वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जेमिनल कपलिंग। तो क्या होगा, HC पहले HA से की वजह से स्प्लिट करेगा एंड देन HB की वजह से। जब HC HA की वजह से स्प्लिट करेगा तो आप उस कपलिंग कांस्टेंट को बोलेंगे JCA। JCA JAC के इक्वली होगा, तो मैं चाहे JCA लिखूं चाहे JAC लिखूं एक ही बात है। एज आई हैव रिटन हियर इनटू डबलेट क्लीव किया देन JAC। दिस इज द ट्री डायग्राम। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम बनाना भी आ सकता है आपको कभी कभी पेपर में, और टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्री डायग्राम। ओके क्लास। अब इसके बाद इसे HB से स्प्लिट करना है। HB एज यू नो विल शो जेमिनल कपलिंग एंड जेमिनल कपलिंग आप देख सकते हैं वैल्यू से कितनी लो है, राइट। ये सारी वैल्यू है हर्ट्ज के अंदर, इट्स वेरी लो हियर। तो अब ये क्या होगा, ये इंटू डबलेट फिर स्प्लिट करेगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत छोटा है इसलिए स्प्लिटिंग पीक्स की बहुत छोटी है। यहां पे बहुत बड़ा है JAC 17.4, इसलिए स्प्लिटिंग बिटवीन द पीक्स या डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन द पीक बहुत ज्यादा है। ये आपको पीक्स में बहुत क्लियरली दिखेगा कि कपलिंग कांस्टेंट कैसा है। अगर दो डबलेट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है दैट मीन्स उनकी कपलिंग अच्छी है, राइट। और अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम है दैट मीन्स उनका कपलिंग कांस्टेंट छोटा है, दैट्स व्हाई आपको डिस्टेंस कम दिख रहा है। इन द केस ऑफ HA अफेक्ट होगा HC और HB दोनों से, पर ज्यादा पहले अफेक्ट होगा HC से बिकॉज ट्रांस कपलिंग, अगेन देखिए ट्रांस है। तो HA HC की वजह से जब टूटेगा दैट विल बी अ डबलेट एंड दिस इज JAC, राइट। एंड फिर JAC के बाद ये कपल करेगा विद B, तो JAB एंड JAB भी इतना छोटा नहीं है, सो दैट्स वाई तुम्हारा जो डबल डबलेट है वो तुम्हें अच्छा दिख रहा है। दिस इज डाउन नॉट एज कम्पेयर टू दिस। नाउ द नेक्स्ट वन HB पहले अगेन ये करेगा कपल। देखिए मैंने यहाँ JBA लिख रखा है, बट JBA और JAB ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर द सेम थिंग। अगर ये सेम नहीं होते तो हम कह ही नहीं सकते थे कि ये प्रोटॉन कपल कर रहे हैं। अगर प्रोटॉन्स दो कपल कर रहे हैं जैसे कि A और B, तो इनका आपस में जो कपलिंग कांस्टेंट है जैसे कि JAB इधर और JBA इधर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जो कि सिंपल स्प्लिटिंग में इक्वल होते हैं, कॉम्प्लेक्स में इक्वल नहीं होते हैं। दैट्स वाई यू कम टू नो कि ये कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग है, इसीलिए तुम्हारे J की वैल्यू सेम नहीं आ रही है दो प्रोटॉन्स की, राइट। हम कई बार कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू देख के ही पकड़ते हैं कि अच्छा इन दोनों का कपलिंग कांस्टेंट सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में कपल कर रहे हैं, एल्स ये कपल नहीं कर रहे हैं आपस में। और अगर कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट आता है दैट क्लियरली शो कि तुम्हारी पीक्स कहीं ना कहीं मर्ज कर गई हैं ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्पेक्ट्रा। अब इस केस में JBA के बाद फिर ये C की इन्फ्लुएंस में आके स्प्लिट करता है एंड एज यू नो JBC इज वेरी लो, तो आपको कुछ ऐसी स्प्लिटिंग दिखती है। अब नेक्स्ट केस जो हमने लिया है वो ये है जिसमें सेंटर वाले की ही मैं बात कर रही हूँ। ये दोनों बहुत इजी है, हो सकते हैं। सेंटर वाले डेल्टा जो है वो 2.1 पे करीब आता है एंड इट शोज अ कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग जो 6 सेक्टेड दिखते हैं बिकॉज JAB एंड JBC ऑलमोस्ट सिमिलर इन वैल्यू है, ठीक है। इन सब बेसिस पे व्हाट वी डू, हम टाइप स्पेक्ट्रा को डिफाइन करते हैं इनटू 2, फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, राइट क्लास। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करनी है एंड नॉन फर्स्ट ऑर्डर की बात करनी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा वो जिसे हम कहते हैं कि सिंपल स्प्लिटिंग हुई, फॉलो करेगा N+1 रूल। इस केस में पीक सेपरेशन, दोनों पीक का सेपरेशन J से ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि अगर HA और HB मैं कह रही हूं कपल कर रहे हैं तो उनके जो दोनों के डबलेट हैं उनकी डेल्टा आप बोल सकते हैं डेल्टा ऑफ डेल्टा या फिर डेल्टा ऑफ म्यू, दैट इज द फ्रीक्वेंसी,
वो काफी हाई होगी एज कंपेयर टू जे। अगर ये हाई नहीं होती तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा नहीं, ये आपका सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा बन जाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग वाला बन जाएगा। ये इंटेंसिटी के लिए फॉलो करता है पास्कल्स रूल या पास्कल ट्रायंगल जो मैंने आपको बताया था। मल्टीप्लेट का या फिर डबलेट का सेंटर जो है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा की वैल्यू हम उससे देते हैं। सेपरेशन ऑफ द पीक इन टू कपल्ड मल्टीप्लेट आर इक्वल एंड इज इक्वल टू जे। अब देखिए मैं इसमें तीनों चीजें तुम्हें आपको बता रही हूं। ये मेरा डबलेट एंड डबलेट आया है, राइट। ये एच ए का डबलेट है जो एच बी के इन्फ्लुएंस से हुआ, और ये एच बी का डबलेट है जो एच ए के इन्फ्लुएंस से हुआ। एज यू कैन से डेल्टा ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज पीक सेपरेशन, इस पीक का इस पीक से सेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जे ए बी, राइट। ये क्लियरली बताएगा कि इसकी जो मर्जिंग पीक्स मर्ज हो सकती हैं वो हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ये बहुत डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस कम हो जाता है तो क्या होगा, हमारी मर्जिंग ऑफ पीक हो सकती हैं, तो वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा नहीं कहलाया जाता। अब इस केस में दोनों जो आपके डबलेट की पीक्स हैं इनके सेंटर वाली वैल्यू को आप बोलते हैं डेल्टा, एंड जे बी ए के इक्वल आएगा। आप इन दोनों की वैल्यूज देख के बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये दोनों प्रोटॉन्स आपस में कपल कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। नॉन फर्स्ट ऑर्डर, इसे आप नॉन फर्स्ट ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे n+1 रूल फॉलो करता था, ये फॉलो नहीं करेगा। ये एक मर्ज स्पेक्ट्रा शो करेगा जो मल्टीप्लेट भी दिख सकता है, बहुत बहुत ज्यादा मर्ज्ड इनटू पीक्स भी हो सकती हैं जिसको आप डिफाइन ही ना कर पाए। इसलिए ऐसा स्पेक्ट्रा यू नेवर वांट, यू वांट अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा जिसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर सके। इस केस में जो आपका पीक सेपरेशन था वो बहुत ज्यादा था जे से, राइट, या फिर बोल सकते हैं पीक सेपरेशन का रेशियो विद जे विल बी मोर देन 1, राइट। यहां पर वो बहुत लो हो जाएगा जे से, मतलब कि पीक्स आपस में पास पास आ जाएंगी। अगर दोनों पीक्स के डेल्टा बहुत नियर होंगे, फ्रीक्वेंसी पीक सेपरेशन बहुत नियर होगी, तो वो जे से छोटी हो जाएगी, तो वो पीक्स मर्ज कर जाएंगी। इसलिए इंटेंसिटी जो है वो कभी फॉलो नहीं करेगी पास्कल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो इनर पीक्स हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और आउटर पीक की डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि अभी थोड़े आगे जाकर हम केसेस पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो मेरा पीक सेपरेशन है वो मेरा फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि बी नॉट पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप इसे बढ़ाएंगे बी नॉट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पीक सेपरेशन बढ़ता जाएगा। डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट डेल्टा अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करेंगे तो वो चेंज होता जाएगा। ये केसेस आपने पहले भी मेरे साथ पढ़े हैं, राइट। तो वैसे डेल्टा एंड जे दोनों इंडिपेंडेंट है किसके, बी नॉट के, बट पीक सेपरेशन डिपेंडेंट है बी नॉट का। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा अगर चाहिए तो सबसे इजी तरीका उसका ये है कि आप अपना बी नॉट हाई कर दें। जैसे आप बी नॉट हाई करेंगे पीक सेपरेशन बढ़ जाएगा, जे की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी नॉट, तो वो उतनी की उतनी ही रहेगी। और ये अचीव होते ही कंडीशन कि ये हाई वैल्यू हो गया है, पीक्स मर्ज नहीं करेंगी, सिंपल स्प्लिटिंग होगी, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा मिलेगा। नहीं तो पीक्स मर्ज कर जाएंगी और आपका जो स्पेक्ट्रा होगा वो नॉन फर्स्ट ऑर्डर होगा, कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग आएगी। लेट्स नाउ गो टू सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। जो कपल्ड न्यूक्लियाई है उनका डेल्टा वैल्यू काफी सिमिलर या सेम होता है, और डेल्टा ऑफ डेल्टा मतलब या फिर डेल्टा ऑफ न्यू वो काफी इक्वल हो जाता है जे के, जिसकी वजह से रीजन क्या है, आपको मल्टीप्लिसिटी n+1 रूल से नहीं पता लगती, आपको वो मर्ज्ड पीक्स मिलती हैं, तो आप कह नहीं पाते कि इसमें क्या स्प्लिटिंग हुई है, राइट। इस केस में होता क्या है, एज आई टोल्ड यू, इनर पीक्स जो है वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आउटर की कम आ जाती है, तो स्पेक्ट्रा जैसा आपको होना चाहिए उससे कुछ डिफरेंट दिखता है, तो आप समझ नहीं पाते कि स्प्लिटिंग हो क्या रही है। जैसे कि अब मैंने एक केसेस बनाए हैं, जब मेरा बी नॉट मैक्सिमम है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा फॉलो होगा, एच ए एच बी की पीक सेपरेशन बहुत हाई है एज कंपेयर टू देयर जे, तो आपका डिफरेंट डिस्टिंक्ट दोनों के डबलेट अलग अलग दिख रहे हैं। पर जैसे जैसे आप इस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, मतलब कि बी नॉट को आप डिक्रीज करेंगे, ये मान लीजिए 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट था और ये मान लीजिए आपका 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट था, तो जैसे जैसे आप इस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे ये पीक्स पास आती जाएंगी, क्योंकि अब डेल्टा की वैल्यू दोनों की पास आ रही है। क्यों? क्योंकि डेल्टा ऑफ पीक सेपरेशन दैट इज डेल्टा ऑफ न्यू ये पास आता जा रहा है,
तो ये पास होता जाएगा तो इनर पीक्स की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आउटर की कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा आपको ये इस तरीके से लगेगा कि ये डबलेट नहीं है, ये तो क्वाड्रेट है, जो कि आप कहेंगे कि रॉन्गली आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आप सही स्ट्रक्चर पे जिसके लिए एनएमआर बहुत यूज किया जाता है वो नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा, राइट। तो आपको सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा नहीं चाहिए, यू नीड फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा के लिए आपको चाहिए कि पीक सेपरेशन काफी हाई हो एज कंपेयर टू जे, एज इन दिस केस। वेयर एज इन दिस केस सेम चीज आपकी क्या हो गई है, आपकी वो पहुंच गई है इनटू क्वाड्रेट, जो आपको नहीं चाहिए। सो अगर आपका डेल्टा ए और बी के इक्वल हो जाए, वो कब होगा, जब मिनिमम बी नॉट होगा। तो आपका जब दोनों का डेल्टा ही सेम है तो आप ये एक दूसरे की वजह से कपल ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसे प्रोटॉन्स हो जाएंगे, अब केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, राइट। तो ये ए बी नहीं रहे, अब ये A2 केस बन गया, राइट। दोनों प्रोटॉन सेम हो गए, तब आप बी नॉट कुछ भी लीजिए फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा और कोई स्प्लिटिंग आपको नहीं दिखेगी, राइट। बट वी नीड फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, दैट इज वी नीड सिंपल स्प्लिटिंग फॉर द स्ट्रक्चर elucidation of any organic compound. Now before starting with different cases, I want to discuss the notation given to this spin system. यहां पर हम ABC सिस्टम भी बोल देते हैं, XYZ भी हम न्यूक्लियाई को ले लेते हैं, तो ऐसा टर्मिनोलॉजी क्यों? ABC अगर आपको मैं बोल रही हूं मतलब इनकी डेल्टा वैल्यू काफी सिमिलर है, पास है। दैट मीन्स कि अगर ABC सिस्टम है तो ये काफी मर्ज्ड स्पेक्ट्रा देगा, राइट, क्योंकि डेल्टा वैल्यू पास है, पीक सेपरेशन कम होगी। पर इसके साथ हमने कॉन्ट्ररी हमने XYZ भी लिया है, दैट मीन्स अगर मैं AX सिस्टम आपको बोलती हूं, दोनों का डेल्टा काफी डिफरेंट है और डेल्टा डिफरेंट होने की वजह से पीक सेपरेशन अलग होगी, तो ये आपको देगा एक फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, राइट। तो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं हर एक मॉलिक्यूल में, इसकी वजह से इन लोगों ने अलग अलग नोटेशंस यूज की हैं। ABC XYZ आपस में इनकी सिमिलर डेल्टा होंगे, पर A का X के साथ A का Y के साथ वाइडली डिफरेंट डेल्टा है, राइट। तो इस केस में आप स्पिन नोटेशन क्या करेंगे उस पर डिपेंडेंट है कि हमारा स्प्लिटिंग क्या है। अगर आप मुझे कोई सिस्टम बोलते हैं कि ये AB सिस्टम है, तो मैं बहुत क्लियरली समझ जाऊंगी कि इनका डेल्टा क्या है, सेम है। तो अब आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि नोटेशन अगर AB सिस्टम की दे रखी है या फिर AY सिस्टम की दे रखी है तो उसका क्या मतलब है। अगर AX सिस्टम आपको दिया है, दैट क्लियरली शोज कि डेल्टा काफी डिफरेंट है, पीक सेपरेशन काफी अच्छा होगा, दैट क्लियरली सेज इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। नाउ अब मैं कहती हूं कि A टाइप के 5 प्रोटॉन्स है, तो आपको क्या करना है, उसे लिखना है A5 AN। जैसे कि अगर कहीं CH3 लिखा है, हमें पता है सारे हाइड्रोजन्स क्या है, इक्विवेलेंट इन नेचर हैं, तो मैं इसे लिखूंगी A3 सिस्टम, ओके। तो दो टाइप के सिस्टम हमें करने हैं, 2 स्पिन एंड 3 स्पिन। 2 स्पिन के अंदर जो केसेस है वो है A2 AB AX एंड 3 स्पिन के अंदर ABC ABX AMX। M ऐसा नंबर, ऐसा नोटेशन इसलिए यूज किया है, दैट मीन्स AX का तो बहुत डिफरेंट है डेल्टा, M का भी A से थोड़ा डिफरेंट है एंड X से थोड़ा डिफरेंट, इट इज इन बिटवीन, पर बहुत पास नहीं है एज लाइक B, ओके। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद A2 सिस्टम। A2 सिस्टम मीन्स दो इक्विवेलेंट ही न्यूक्लियाई हैं, बिल्कुल सेम, जैसे कि ये एग्जाम्पल, दोनों इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई है, सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, सिंगलेट एग्जिबिट करेगा। AB सिस्टम AB दैट मीन्स सिमिलर डेल्टा, दोनों का डेल्टा काफी सिमिलर है, डेल्टा ऑफ A माइनस डेल्टा ऑफ B बहुत स्मॉल होगा, दैट मीन्स डेल्टा ऑफ न्यू काफी स्मॉल होगा। अगर ये वैल्यू स्मॉल है, वही जो होता है दैट इज सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा फॉलो होगा, इनर लाइंस इंटेंसिटी बढ़ेंगी, आउटर लाइन डिक्रीज हो जाएंगी, राइट क्लास। अगर मैं लेती हूं AX सिस्टम, अगर मेरा AX सिस्टम है, डेल्टा ऑफ A माइनस डेल्टा ऑफ X काफी लार्ज है, मतलब डेल्टा ऑफ न्यू डिवाइड बाय J बहुत लार्ज होगा, दो डिस्टिंक्ट डबलेट आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे डिस्टिंक्ट डबलेट, एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर। नॉर्मली जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं उनमें हमारा फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा ही दिया जाता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, पर अगर कभी आपको कोई कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा दिख जाए तो आपको इन सिस्टम्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, इसलिए आपको ये सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। अब ये देखिए, मैंने ग्राफ के अंदर तीनों सिस्टम एक साथ ही बता दिए, AX सिस्टम
पीक सेपरेशन काफी अच्छा है, जे से काफी ज्यादा है, इसलिए अच्छे अच्छे डबलेट आपको दिख रहे हैं। एबी सिस्टम में पीक सेपरेशन काफी लो है, इनर की इंटेंसिटी बढ़ गई, आउटर की कम हो गई, डिस्टॉर्टेड डबलेट आपको मिला है, 1:1 इंटेंसिटी नहीं है, पास्कल ट्रायंगल मतलब आपका इंटेंसिटी नहीं बता रहा। A2 सिस्टम मतलब दोनों सिमेट्रिकल हैं, राइट, दोनों सेम टाइप ऑफ न्यूक्लिया हैं, मैग्नेट केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लिया हैं, सिग्नलेट आपको मिलेगा एज आई टोल्ड यू। नाउ अब हम बाकी 3 सिस्टम करते हैं जो 3 स्पिन सिस्टम है, दैट इज ABC, ABX एंड AMX। मैंने AMX से स्टार्ट किया है क्योंकि ये हमारा सिंपल स्पेक्ट्रा देगा, हमें सिंपल स्प्लिटिंग देगा। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्पेक्ट्रा। आपने ऐसा एक एग्जाम्पल अभी पीछे भी किया था जिसमें उन्होंने COCH3 यूज कर रखा था, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इनका नाम दिया है AMX, जो सबसे ज्यादा डाउनफील्ड है उसको मैंने A दे दिया है, जो उसके हाँ राइट, तो इनको AMX सिस्टम दिया है। इन तीनों का डेल्टा काफी डिफरेंट है, A और X का दोनों का काफी डिफरेंट क्या है, डेल्टा वैल्यू है, इसलिए मैंने इनको यहां लिख दिया है। ये इनकी J वैल्यूज है। एज यू कैन से A और AM इसका डेल्टा वैल्यू J वैल्यू काफी लो है क्योंकि जेमिनल कपलिंग है, तो J वैल्यू काफी लो होगी एज कम्पेयर टू द अदर्स वन। This X and M that will be having the maximum value that is 14 here. Okay class? तो अब स्प्लिटिंग देख लीजिए। X की स्प्लिटिंग पहले लिखी है मैंने। HX जो स्प्लिट करेगा पहले M की वजह से करेगा क्योंकि ट्रांस है, देन A की वजह से करेगा। एंड इसको आप JX से भी लिख सकते हैं, JAX भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ सिंपल स्प्लिटिंग। डेल्टा बहुत डिफरेंट है। HM जो मेरा है पहले M की वजह से स्प्लिट करेगा, पहले X की वजह से स्प्लिट करेगा, देन A की वजह से स्प्लिट करेगा। एंड लास्ट केस इज HA जो है पहले वो स्प्लिट करेगा ड्यू द प्रेजेंस ऑफ X देन M की वजह से, बिकॉज जेमिनल बाद में स्प्लिटिंग आएगी। ठीक है क्लास। नाउ द नेक्स्ट केस ABX केस में दोनों A और B का डेल्टा काफी नियर है। A और B के सिग्नल्स जो है वो मर्ज कर जाएंगे, इसलिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग यहां पे भी क्वाड्रेट, जैसे आपको ऊपर क्वाड्रेट दोनों के मिले थे वैसे ना मिलके आपको यहां 2 डबलेट मिलेंगे, क्योंकि आपका जो A और B की वजह से स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग इनकी हुई है वो हुई है ड्यू टू X। A की वजह से कोई स्प्लिटिंग हुई, इसमें B की वजह से नहीं हुई और इसमें A की वजह से स्प्लिटिंग नहीं हुई, क्योंकि जो J वैल्यू है वो बहुत 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 लो है, इनके केस में काफी लो है। पीक सेपरेशन जो है वो दिख ही नहीं रहा, इसलिए वो पीक्स मर्ज कर जाती हैं। ये दोनों देते हैं डबलेट एंड ये अपना क्वाड्रेट एज यूजुअल देता है। ओके, जैसे कि ये केस है, ये मेरा X है, ये मेरा AB है। X मेरा क्वाड्रेट अच्छे से दे रहा है, बट ये भी काफी मर्ज्ड टाइप क्वाड्रेट है अगर आप ध्यान से देखें, राइट। बट स्टिल इट इज वेरी डिफरेंट देन AB की तो एक मर्ज पीक आ रही है जिसको आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। ओके, अब एक नई टर्म है जो मुझे आपको इंट्रोड्यूस करानी है। अभी तक आपने एक टर्म पढ़ी थी केमिकली इक्विवेलेंट, मतलब सेम डेल्टा। अब एक टर्म है नई जिसको बोलते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, मतलब सेम J। अब ये क्या है, देखिए, अगर 2 न्यूक्लियाई हैं एंड उनका सेम डेल्टा है तो इट कैन बी, देयर आर चांसेस कि उनका सेम J भी होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। इक्वल J वैल्यू होगी तभी आप उसको बोलेंगे कि वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, राइट। तो डेल्टा सेम होने के लिए एनवायरमेंट सेम चाहिए, पर J सेम होने के लिए डेल्टा भी सेम चाहिए, प्लस J वैल्यू टू अदर न्यूक्लियाई जो इक्विवेलेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर वो भी सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो क्लियरली आप बोल सकते हैं वो न्यूक्लियाई मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है, इवन इफ दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। नाउ लेट्स डिस्कस कि भाई ये मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होते क्या हैं। ठीक है, मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई। अब देखिए, जैसे ये बेंजीन है मेरा, मैंने डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन लिया जिसमें पैरा पे दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। HA जो है, अगर आप सेंटर से मैं एक्सेस पास करूं, ये दोनों HA हैं और ये दोनों HB हैं, एज नोटेशन जितना हमने अभी तक पढ़ा है। HA जो है HB की वजह से डबलेट में स्प्लिट होता है एंड HB HA की वजह से। पर अगर मैं ध्यान से क्लोजली देखूं, ये HA इसके साथ 3 बॉन्ड्स पे है और ये HA इस HB के साथ 5 बॉन्ड्स पे है। यहाँ J3 कपलिंग है, J5 कपलिंग है। कपलिंग कांस्टेंट इन दोनों का सेम नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकती हूं कि ये इक्विवेलेंट इन नेचर हैं दोनों के दोनों। दे आर, डेल्टा सेम है
तो केमिकली इक्विवेलेंट बट नॉट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, राइट, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट सेम नहीं है। अगर ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते तो इतने क्लोज होते कि ये स्प्लिट ही नहीं करते एक दूसरे को, राइट। तो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते तो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते, राइट, चाहे जितने मर्जी क्लोज हो जाएं इन डेल्टा। पर अगर ये मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट है तो एक दूसरे को स्प्लिट भी करेंगे, पर ये स्प्लिटिंग आपको नॉर्मली दिखती नहीं है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू विस्नल स्प्लिटिंग, विस्नल कपलिंग के बाद की जो कपलिंग्स हैं उनकी वैल्यू इतनी लो हो जाती है कि एट टाइम्स ये नहीं दिखती, पर एक दो केसेस हो सकते हैं कि ये दिखे। दैट्स वाई बेंजीन का आपको नॉर्मली जो दिखता है वो एक मल्टीप्लेट दिखता है, इंस्टेड ऑफ यू गेट अ वेरी क्लियर स्पेक्ट्रा। देखिए अब ये कुछ केसेस मैंने लिखे हैं जो हैं ए डैश बी डैश के, जिसमें मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट न्यूक्लिया है। ए डैश एंड ए हैव सेम डेल्टा बट दे आर नॉट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, दैट्स वाई इनका स्पेक्ट्रा में स्प्लिटिंग आएगी एक दूसरे की वजह से, मतलब ए बी की वजह से स्प्लिट करेगा, ए बी डैश की वजह से भी स्प्लिट करेगा, पर ए जो बी डैश की वजह से स्प्लिटिंग शो करेगा वो इतनी लो होगी कि एट टाइम्स वो नहीं दिखेगी, पर अगर वो दिखती है तो यू कैन सी दैट देयर विल बी अ डबल डबलेट बिकॉज ऑफ फर्स्टली बी एंड देन बी डैश। ये सारे केसेस हैं जिनमें ये शो हो सकती है। अब आप ध्यान से देखिए तो मैंने फ्लोरीन का केस भी यहाँ लिखा है। फ्लोरीन से कैसे स्प्लिटिंग होगी? अगर आप ध्यान दें तो फ्लोरीन की सेंसिटिविटी और H की सेंसिटिविटी सेम है इन NMR। सो F अपना सिग्नल नहीं शो करेगा, पर F की वजह से स्प्लिटिंग जरूर शो करेगा। दैट मीन्स ये जो HB है पहले F A की वजह से स्प्लिट करेगा, फिर FB की वजह से, एंड देन HA की वजह से स्प्लिट करेगा। दोनों की वजह से डिफरेंटली स्प्लिट करेगा, इंस्टेड ऑफ दोनों फ्लोरीन सेम होते, पर ये सेम नहीं है क्योंकि ये इसके ट्रांस है एंड ये इसकी सिस है, एंड एज यू नो ट्रांस एंड सिस कपलिंग आर डिफरेंट, इसलिए J ऑफ HA HB एंड FA एंड J ऑफ HB एंड FB डिफरेंट होंगे, सेम एज J ऑफ HA FB एंड J ऑफ HA FA डिफरेंट होंगे, इसलिए इनकी स्प्लिटिंग्स भी कॉम्प्लेक्स होंगी, ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा देंगे। ठीक है, एज आई टोल्ड यू वही J3 एंड J5 दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपका जो स्प्लिटिंग होगा वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स HA पहले जो है वो HB की वजह से स्प्लिट करेगा, देन HB डैश की वजह से स्प्लिट करेगा। वही सेम बात कि ये बहुत लो होगा, HB डैश की वजह से स्प्लिटिंग होगी, इसलिए कई बार दिखती नहीं है, पर अगर दिखेगी तो यू विल ऑब्जर्व अ मल्टीप्लेट आउट ऑफ इट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एज आई टोल्ड यू सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें आप देख नहीं पाते हैं कि आसपास कितने प्रोटॉन्स है, क्योंकि स्प्लिटिंग ही क्लियर नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि आसपास जो कपल्ड हो रहे हैं वो प्रोटॉन्स वो कितने हैं क्लियरली। तो आपको इस सेकेंड ऑर्डर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस स्पेक्ट्रा को, और सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर को कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर में, राइट। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए एज यू नो कि मेरा पीक सेपरेशन या फिर डेल्टा इन हर्ट्ज में बोलूं, बात वही है, पीपी में नहीं हर्ट्ज में, वो पीक सेपरेशन ही हुई, वो मेरी बी नॉट पे डिपेंड करती है, एंड जे मेरा इंडिपेंडेंट है बी नॉट से। ये दोनों कंडीशंस को आपको पता है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वैल्यू को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ सकती है, आपको ये वैल्यू तभी बढ़ सकती है जब इसको बढ़ाएं, क्योंकि ये बी नॉट पे डिपेंड करती है, और बी नॉट बढ़ाएंगे तो ये अपने आप बढ़ेगी। सो फर्स्ट वे टू चेंज अ सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा इनटू फर्स्ट ऑर्डर, वो कैसे कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर दीजिए बी नॉट, आपका ये वैल्यू बढ़ जाएगा, इससे सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट, गो फॉर अ हायर वन दैट इज 500 मेगाहर्ट्ज, राइट। बट सबके पास 400-500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट हो जरूरी नहीं है, तो इसके लिए और भी तरीके हैं जिससे हम सेकेंड ऑर्डर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, जिसका एक केस है सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट का क्या मतलब है, देखिए एज यू नो हमारे दो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स दे डोंट इंटरेक्ट विद आवर कंपाउंड्स, बट पोलर सॉल्वेंट्स कैन इंटरेक्ट with a compound, they can form dipole-dipole interactions, they can do hydrogen bonding। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से डेल्टा को शिफ्ट कर देते हैं डाउन फील्ड। तो अगर मेरे प्रोटॉन्स का डेल्टा शिफ्ट हो जाता है डाउन फील्ड, अगेन पीक सेपरेशन बढ़ेगी। पीक सेपरेशन बढ़ती है तो क्या होता है, पीक सेपरेशन बढ़ती है तो हमारी पीक्स
डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट दिखने लग जाएंगे। और अगर पीक्स डिस्टिंक्ट दिख रही हैं तो वही हो गया कि सेकेंड ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। नाउ द थर्ड वे क्या है, आप ये स्पेसिफिक है ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ये आपके एक्टिव हाइड्रोजन्स में जिन्हें बोलूंगी कि जो आपके लिबाइल हाइड्रोजन्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक है, जो एसिड्स में, अल्कोहल्स में एंड अमीन्स में देखे गए हैं कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये आपके जो हैं ये हाइड्रोजन्स आपके एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पता करने के लिए कि ये एसिड का ही हाइड्रोजन है या फिर ये अल्कोहल का हाइड्रोजन है या फिर अमीन का हाइड्रोजन है, हम क्या करते हैं, पहले इनका नॉर्मल एक CdCl3 में या किसी भी सॉल्वेंट में जिसमें सॉल्युबल हो, राइट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में स्पेक्ट्रा लेते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रा लेने के बाद व्हाट वी डू, हम उसमें 3-4 ड्रॉप्स D2O की, दैट इज हैवी वाटर, उसकी डाल देते हैं। जैसे ही आप D2O की ड्रॉप्स डालेंगे ये हाइड्रोजन्स कैपेबल हैं ऑफ एक्सचेंजिंग देमसेल्फ, राइट। जैसे ही एक्सचेंज करेंगे ROD बना लेंगे या RCOD और या फिर RND2, तो आपका अब ये वाला H बचा नहीं है जो सिग्नल देता, यहां पे वो सिग्नल नहीं मिलेगा। और जैसे ही सिग्नल गायब होगा आप बता सकते हैं ये पीक जो आ रही है ये OH, NH2 या COH की वजह से आ रही है। एज यू नो ये पीक्स काफी वेरिएबल जगह पे आती हैं, इनकी रेंज काफी ज्यादा है। रेंज ज्यादा होने का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक और चीज, ये बहुत ब्रॉड सिग्नल देती हैं एंड एट टाइम स्प्लिटिंग भी नहीं दिखाती, नो स्प्लिटिंग। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये रैपिडली एक्सचेंज होती हैं विद द एनवायरमेंट। जैसे कि एक अल्कोहल जो है वो जो एनवायरमेंट आप ले रहे हैं उससे अपना H एक्सचेंज कर लेता है, राइट। एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के H से अपना H एक्सचेंज कर लेता है। समटाइम्स आपने उसमें, आप जब ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई एसिडिक प्रोटॉन आ गया है या वाटर ही थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो वाटर के H से भी अपना H एक्सचेंज करता रहेगा और इतनी फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज करता है कि ये OH का H R ग्रुप के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाता। अब इंटरैक्ट नहीं करेगा तो स्प्लिटिंग नहीं आएगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि H है और स्प्लिटिंग नहीं आ रही है? तो स्प्लिटिंग अगर आपको चाहिए तो आपको वो कंपाउंड अल्ट्रा प्योर करना पड़ेगा। दैट मीन्स ना उसमें वाटर हो, ना उसमें कोई एसिडिक इंप्योरिटी हो, ना उसमें कोई ऐसी इंप्योरिटी हो जो इस H को क्या कर सके, इस H को निकाल सके या रैपिड एक्सचेंज शो कर सके, तब आपको स्प्लिटिंग ऑब्जर्व होगी। जैसे कि आप केस लेके अगर चलते हैं मीथेनॉल का, मिथेनॉल से बेटर लेट्स टेक इथेनॉल। इथेनॉल में अगर मेरा अल्ट्रा प्योर इथेनॉल है, यू विल सी कि इसका ट्रिपलेट आ रहा है, इसका एक मर्ज्ड 4+1, राइट, एक क्विंटेट दिखेगा। ये एक कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा है, क्विंटेट, राइट। ये दोनों प्रोटॉन्स मिलकर एक क्विंटेट देंगे। वैसे देना चाहिए था 4 2 8, दैट मीन्स एक 8 पीक्स आनी चाहिए थी, बट ऐसा आता नहीं है, वो मर्ज हो जाता है। अगेन वही सेम बात, क्या, सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। तो ये क्विंटेट देगा एंड दिस विल गिव यू अ ट्रिपलेट। वेयर एज जो आपको मिलता है नॉर्मली, क्योंकि आपका जो इथेनॉल आप यूज कर रहे हैं अगर वो प्योर नहीं है ड्यू टू सम रीजन, ये आपको सिंगलेट देगा, वो सिंगलेट ब्रॉड होगा, ये आपको देगा एक क्वार्टेट और ये आपको देगा एक ट्रिपलेट। यहां ये क्विंटेट दे रहा है, यहां एक क्वार्टेट दे रहा है, क्योंकि ये OH इसको स्प्लिट नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? ड्यूटेरियम एक्सचेंज बट सिर्फ ये 3-4 मॉलिक्यूल्स के लिए ही यूज किया जा सकता है, नॉट फॉर ऑल। अभी जो नेक्स्ट केस है ये काफी यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है, पहले इस केस का नाम है स्पिन स्पिन डीकपलिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना डबली इरेडिएट किया जाता है अपने मॉलिक्यूल। अब ये डबली इरेडिएशन का क्या मतलब है, जैसे कि पहले आप एक बार रेडिएट तो करते ही हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी से। डबली इरेडिएशन का मतलब है कि आपने एक बार इरेडिएट कर रखा है, सबके सब रोज रेजोनेंस अचीव कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, आप एक सेकेंड फ्रीक्वेंसी से फिर इरेडिएट कर रहे हैं। एंड ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो है ना ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। ये क्या करती है, जो पहले ट्रांजिशन हो रहे हैं और उन्हें जल्दी जल्दी रैपिड कराती है अमंग द न्यूक्लियर स्प्रिंग अल्फा और बीटा के बीच में, जिसकी वजह से जो आसपास के नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं, ये जो स्पिन है उस स्पिन स्टेट को इरेडिएट हाइड्रोजन के देख नहीं पाते। दैट मीन्स कि जिस प्रोटॉन को आप इरेडिएट करा रहे हैं स्पेसिफिकली, वो जो है स्पिन स्पिन इंटरेक्शन नहीं शो कर पाता या स्पिन स्पिन इंटरेक्शन रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि अब केस लेके चलते हैं, एज यू नो ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा देगा, मल्टीप्लेट देगा। अब हमें नहीं पता लग रहा कि ये किस किस से कपल कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक एक बार ना तीनों प्रोटॉन्स को इरेडिएट कराते हैं।
पहले मैंने सी को कराया, फिर बी को और फिर ए को। अगर मैं सी को करा रही हूँ मतलब कि ये स्प्लिटिंग शो नहीं करेगा, ये अपना सिग्नल भी शो नहीं करेगा। बी जो है सिर्फ एक ही वजह से स्प्लिट करेगा, क्वार्टेट देगा। ये कराते ही मुझे पता लग गया कि ये जो है मेरा ये वाला CH2 इस CH3 से क्या कर रहा है, कपलिंग कर रहा है। जब मैंने बी को रेडिएट कराया मुझे 2 सिंगलेट मिले, मतलब कि ये दोनों आपस में कपल नहीं करते। जब मैंने कराया रेडिएट ए को तो मुझे दिखा कि जो बी है उसका ट्रिपलेट आ रहा है, क्लियरली शोइंग कि ये इस वाले CH2 से भी कपल कर रहा है। सेंटर वाला जो CH2 है उसका एक क्वार्टेट ट्रिपलेट आना चाहिए था, जो कि नहीं आता, उसका मल्टीप्लेट आता है। रीजन, क्योंकि ये एक सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा देगा। तो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन को रिमूव करा के ड्यू टू डबल इरेडिएशन आप ये काम अपना सॉल्व कर सकते हैं कि आप एक सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं। टू आइडेंटिफाई द मल्टीप्लेट किस किस कपलिंग की वजह से आया है। नाउ द नेक्स्ट केस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लैंथेनाइट शिफ्ट रिएजेंट। लैंथेनाइट एज यू नो आर द रेयर अर्थ मेटल्स, राइट। इनका क्या काम, और शिफ्ट वर्ड का मतलब कुछ तो शिफ्ट करा रहे हैं, राइट, विदाउट यूजिंग बी नॉट। सबसे बड़ी बात, इसमें आप बी नॉट को बढ़ा नहीं रहे, बी नॉट वही ले रहे हैं। लैंथेनाइट शिफ्ट रिएजेंट आप डाल रहे हैं जिससे सेकेंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर जा रहा है मेरा स्पेक्ट्रा, जो मेरे लिए आसान है करना। बिकॉज अगर मेरे पास हायर मैग्नेटिक फील्ड का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो क्या करें, लैंथेनाइट शिफ्ट रिएजेंट डाल दें, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसके 2 कंपाउंड्स हैं जो यूज होते हैं, दैट इज यूरोपियम, DPM। DPM का फॉर्मूला इज दिस। द सेकेंड वन इज EuFOD. FOD is a tris 1112233. That means how many? 7 fluorine. It's a fluorinated compound जो EU के साथ लगा हुआ है। Now let's go into their functioning कि करते क्या हैं। ये दोनों के दोनों माइल्ड ल्यूइस एसिड है। एज यू नो ल्यूइस एसिड क्या करेंगे, ये किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब कि लोन पेयर हो, जैसे कि NH2 OH CHO CO SHO, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये वहां पे ही जाएंगे और जहां पे सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी लोन पेयर की, सबसे पहले वहां जाके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये हमारे डेल्टा को क्या करेंगे, डी शील्डेड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इन सबसे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अगर ये इन सबसे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ड्यू टू लुईस एसिडिटी, तो ये फ्रैगमेंट अपने मॉलिक्यूल के अंदर माइनस आई इफेक्ट लगाने शुरू कर देंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो जो प्रोटॉन्स होंगे रिस्पेक्टिव साथ में फ्रेगमेंट्स में, उनका डेल्टा क्या होगा, ज्यादा डाउनफील्ड हो जाएगा। इसलिए जो पीक्स अभी मर्ज कर रही हैं, पीक सेपरेशन अभी कम है, वो बढ़ जाएगा एंड आपका सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, एज इन द केस ऑफ हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल में आपको पता है ये OH के साथ लगा हुआ है तो ये अलग पीक देगा 3.6 पे। CH3 अपना एक अलग दे देता है ट्रिपलेट, बट जो सेंटर वाले सारे हैं ये कुछ इस तरीके से एक मर्ज पीक देते हैं फ्रॉम 1.2 से 1.8। पर जैसे ही आप इसमें डालते हैं यूरोपियम का एक कंपाउंड, देखिए डाउनफील्ड श्योरली हो गया है, स्पेक्ट्रा 6 पे आ रही है आपकी पीक। आप डेल्टा नहीं इसमें यूज कर सकते, बट आप ये जरूर बता सकते हैं कि ये अलग अलग प्रोटॉन्स की पीक है और इनके एरिया से आप निकाल सकते हैं अब कि ये कितने प्रोटॉन्स की पीक है, राइट। कपलिंग इनकी बहुत अच्छे से निकाली जा सकती है क्योंकि स्प्लिटिंग काफी अच्छी दिख रही होती है। ये सारे क्विंटेट शो कर रहे हैं अपने आप को, एंड मिथाइल एज यहां पे भी आपका ट्रिपलेट था, वहां पे ट्रिपलेट शो करेगा खुद को। बस स्पेक्ट्रा डाउनफील्ड हो गया है, पीक सेपरेशन बढ़ा ली है उसने अपनी, इसलिए सेकेंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्जन आ गया है। नाउ द लास्ट टाइप इज वेरिएबल टेम्परेचर NMR। इसमें क्या होता है, आप ना अपने कंपाउंड का NMR या तो हाई टेम्परेचर पे करते हैं या लो टेम्परेचर पे करते हैं, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट में चेंजेस आते हैं एंड ड्यू टू चेंज इन मूवमेंट उसका जो पीक सेपरेशन है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर्ड इन साइक्लोहेक्सेन। इसके 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। दोनों का डेल्टा डिफरेंट है बट बहुत कम डिफरेंस है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दैट मीन्स पीक सेपरेशन ज्यादा नहीं है। तो ये एक मर्ज स्पेक्ट्रा देते हैं, एक सिंगलेट देते हैं, राइट। ये A2 की तरह बिहेव करते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिंगल पीक। पर जब आप इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, इतना लो कर देते हैं, तो अब ये फ्रीज हो गया है। अब इनकी मूवमेंट या फ्लिपिंग नहीं हो रही है, और अगर रिंग की फ्लिपिंग नहीं हो रही है तो अब एक्सियल अपने एनवायरमेंट में अलग है और इक्वेटोरियल अपने एनवायरमेंट में अलग है। दोनों के डेल्टा अलग है, पीक स्प्लिटिंग भी अलग दिखेगी और 2 सिग्नल्स आपको अलग अलग मिलेंगे दोनों प्रोटॉन्स के, राइट क्लास।
नाउ ये नेक्स्ट केस है DMF का। ये केस भी आप पहले पढ़ चुके हैं। इस केस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये फ्लिपिंग रिस्ट्रिक्शन कम हो जाती है। दैट मीन्स लो टेम्परेचर अगर आप करेंगे तो कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा आएगा एंड ये दोनों अपनी अलग अलग पीक दिखाएंगे। एंड हाई टेम्परेचर आप करेंगे तो कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा आएगा एंड दोनों का सिंगल पीक आएगा। दैट मीन्स दोनों CH3 सिंगल पीक देंगे एंड लो टेम्परेचर पे दोनों CH3 दो पीक्स देंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आ गई है ड्यू टू रेजोनेंस, राइट। तो लो टेम्परेचर पे इन टोटालिटी आपको 3 पीक्स मिलेंगे एंड हाई टेम्परेचर पे इन टोटालिटी आपको 2 पीक्स मिलेंगे, बिकॉज ये वाली रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है और ये वाला मॉलिक्यूल दैट मीन्स फ्लिपिंग ऑफ CH3 बढ़ गई है। दैट्स इट। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा भी हमने फिनिश कर लिया है कि सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को हम फर्स्ट ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन नेट क्वेश्चंस एज वेल एज in the questions of solving NMR spectra. Thank you for watching, guys.